Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you for joining us today in the corporate briefing session of Faisal Bank for the year December 2025. We would start with Tilawat Quran, and I would request Mufti Abdul Rahman to recite a few verses of Holy Quran. Thank you. Please, Abdul Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, my name is Tanveer Khatri, and I'm the CFO of Faisal Bank. Mr. Yusuf Hussain, President and CEO, will also be joining us. We also have Shuja Haider, who is our treasurer, along with the head of financial reporting, Asad, and his team. So, starting with the corporate briefing presentation. I will be giving an overview of the bank performance during 2025. Then, after that overview, we will be taking questions. Starting with the presentation, we are proud to be the second largest Islamic bank in Pakistan with a strong, resilient, and growing franchise. In terms of ownership, Etmar Holding in Bahrain holds 66.78% of our shareholding. Darul Mal Al Islami Trust remains our ultimate parent. In terms of Sharia compliant, we have international Sharia compliance and fiduciary rating of SCFR PK1, which is the highest rating for Islamic Sharia compliance. Faisal Bank is offering full-fledged Sharia compliance financial services across all the business segments. In terms of rating, we have a long-term rating of AA plus and short-term rating of A1 plus with 900 branches as of December 2025, out of which 45 branches were opened in 2025. We have a customer base of 2.3 million plus customers with 10,000 plus employees. In terms of assets, we have approximately 1.8 trillion assets and deposit base of 1.4 trillion plus. We have two subsidiaries, Faisal Asset Management, which the rating of AM1, and another subsidiary which was opened in 2024, Faisal Islamic Exchange, with shareholding of 100%. So, in terms of our geographical presence, our network continues to expand nationwide with a strong presence in Punjab and Sindh. We have 900 branches, as mentioned earlier, with presence in more than 360 cities across Pakistan.
So in terms of products, we operate as a well-diversified business model covering retail, corporate, treasury, and consumer. The details of these products are available on our bank's website. So this slide shows a brief journey of Faisal Bank, highlighting the key events from 2001 to 2025. We got incorporated in 1994, and in 2001, we got merged with Al Faisal Investment Bank Limited. In 2003, our subsidiary Faisal Funds got incorporated in got amalgamated with RBS, with a total branch network reaching 226 and bringing FBL into the top 10 banks of Pakistan in terms of size. In 2014, the board decided to convert Faisal Bank into a full-fledged Islamic bank. In 2017, the shareholding of Faisal Asset Management was increased from 30% to 99.99%. In 2022, Alhamdulillah, we got converted into a full-fledged Islamic bank with our total assets crossing the milestone of 1 trillion, with branch network reaching 700. In 2023, it was first year being an Islamic bank, and eventually post-conversion, we became the second largest Islamic bank and crossed 1 trillion in terms of deposits. In 2024, we established our currency exchange subsidiary, Faisal Islamic Currency Exchange, and reached the branch network of 855. In 2025, we opened another 45 branches, reaching the total of 900, and the deposit base crossed 1.4 trillion mark. We remain committed in terms of our vision, mission, and core values. Our core values are embedded in our DNA, which are faith and belief, integrity, teamwork, innovation, and care. In terms of corporate strategic goals, our focus remains on growing low-cost sticky deposits and focusing on mass affluent customer segment. As you can see from these last 5 years' numbers as well, we have been expanding. Our focus is on increasing low-cost deposit base, and our CASA ratio has been constantly increasing from 75.42% in 2021 and reached 81.8% in 2025. In terms of lending, we'll continue to grow. We have slightly changed our balance sheet mix. We are more skewing towards our CB, SME, and consumer segment. We'll continue to grow. We'll cautiously underwrite our portfolio. Our financing has been increasing. Our market share has increased this year, and our NPL are persistently decreasing. In 2025 as well, our NPL reduced from 24 billion to 20 billion, and eventually our infection ratio has been persistently decreasing and have reached 2.25% as of December 2025. In terms of our another strategic goals, we remain committed in digital transformation. We remain committed in enhancing the overall customer experience, and we remain committed in optimizing the shareholder return. In terms of key revenue drivers and business segments, we have already discussed that in terms of retail and SCB SME, we have opened 45 new branches. We have launched co-badge, Payback, and MasterCard Faisal Islamic debit card. We have launched certain new products for our agri business and the export, promote our export business. Our CVSME portfolio has surpassed 174 billion with an increase of 58% in 2025. In terms of consumer,
Our new card remains the most desirable card in the market with over 78,000 new customers during 2025, with the spend growing by 40%. In terms of overall consumer portfolio, we have crossed 75 billion mark in terms of total financing. In terms of corporate and investment banking, our trade volumes have increased by 40%. Our overall trade volumes have reached approximately $4.5 billion. Our remittance business continued to outshine. Our market share has increased from 4.2% to 6.1% this year, with remittance volume increasing by 31%. Our corporate and investment banking has executed multiple landmark deals in telecommunication, oil and gas, and other sectors. Our treasury has been able to generate healthy FX volumes and numbers, offering competitive pricing. There has been an increase of approximately 50% in terms of our FX income due to these increased trade flows and increased remittance business. In terms of digital transformation, I mean, as you can see, our IT cost has increased by approximately 30% during 2025. That's predominantly because of the digital transformation, I would say accelerated digital transformation. In 2025, we have launched our new mobile app with a completely new interface. The subscriptions in 2025 has been more than 1 million plus. Approximately 77% of our total transactions are being run through our digital penetration. Our total transaction throughput through digital is approximately 3.5 trillion plus, with 69 million plus number of transactions. In terms of awards and recognition, our efforts have been continued to be recognized across the industry with awards in digital innovation, financial inclusion, diversity, and governance. We have been recently awarded the Best Islamic Retail Bank mid-size at the 11th Islamic Retail Banking Awards. And we have also been awarded as the Best Mid-size Bank at the Pakistan Bankers Award. So in terms of key financial highlight, the profit after tax of 2025 was 21.7 billion, which is around 5.8% lower than last year. This was predominantly, as you all are aware, there was a steep decline in policy rate, where the policy rate were reduced from average 19% in 2024 to 11% in 2024. Plus, Islamic banks were impacted by the minimum deposit rate implementation by State Bank. Our total assets have grown by 212 billion and reached 1.8 trillion mark. Our focus during 2025 were on low-cost sticky deposits, where our current account grew by 31.3%. In absolute terms, the CASA growth was around 128 billion, bringing the CASA mix to 37.5%. The liquidity generated from deposits were predominantly deployed in financing, where our financing book increased by 37.6% and reached 872 billion, improving our overall market share as well. Our ADR remains 60% plus. I mean, we are proud being one of those banks whose ADR has always been 50% plus. Eventually, our infection ratio reduced from 3.6% last year to 2.3%. In terms of total revenue, despite of reduction in policy rate, our total revenue increased by approximately 1 billion and reached 99 billion.
We have Mr. Yusuf Hussain, and I would request our president to shed few words on our performance during 2025 and our overall mission and goals. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं इसमें गुजारिश थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग करना चाहता हूँ कि जो बैंक है वो एक्सपैंड किए जा रहा है अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस, बिकॉज दैट इज़ आवर स्ट्रेटजी कि हम 1200-1300 ब्रांचों पे पहुँच जाएं अगले 2-3 सालों के अंदर। और उसके अंदर ऑब्वियसली जब आप ब्रांच खोलते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है जितनी देर में वो ब्रांच पहले प्रॉफिटेबल होती है और फिर वो एक ओवरऑल नेटवर्क में अपना वैल्यू ऐड करने लग जाती है और मैच्योरिटी में 4-5 साल उसके लग जाते हैं। सो बैंक जो है वो अपनी ओवरऑल एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऊपर जारी है और ऑब्वियसली इस वक्त जो हालात हैं उसमें बैंक एक बड़ी केयरफुल स्ट्रैटेजी के ऊपर है और उसके ऊपर हम सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो उसको हमने कैसे लेके चलना है, क्रेडिट पोर्टफोलियो को, हमारी डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो हमने किस तरीके से और किन मार्केट्स में करनी है। मगर ओवरऑल बेसिस पे एक बैंक की ग्रोथ स्ट्रेटजी बरकरार है। 5 साल का हमारा एक कॉर्पोरेट प्लान बना हुआ है जिसमें ये साल पहला साल है और अगले 4 सालों में इस साल के बाद जो है वो एक सिग्निफिकेंट हम देख रहे हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस्लामिक बैंकिंग की लोगों की प्रेफरेंस है और हमारी मार्केट जो है माशाल्लाह हमारे नाम से बहुत अच्छी तरह से वो रिस्पॉन्स दे रही है हमें और हम एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो चुके हैं। सो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर सो हमारी एक बहुत ही नुमाया जो है हमें एक जो हमारी पोजीशनिंग होगी इन द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर एंड दीज आर द इन्वेस्टमेंट ईयर्स। और मगर ये ज़रूरी है इसलिए ताकि ये कि आगे जो है हमारी एक फुटिंग जो है वो एक बड़े बैंक के तौर पे हो और हम जो बेनिफिट्स हैं अपने नेटवर्क एक्सपैंड करने के वो रीप कर सकें। ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी में जो है हमारी कोशिश है कि हम जब नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं तो फिर हमारी जो एक सप्लाई चेन होती है कि एक तरफ आपका बायर होता है, एक तरफ आपका सप्लायर होता है और दरमियान में हमारा की रिलेशनशिप होता है। तो जब आप ब्रांचेस एक्सपैंड करते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ऑलरेडी हम तकरीबन 300 शहरों में हैं और उन्हीं शहरों में से जो बड़े शहर हैं उनमें हम डेप्थ क्रिएट करेंगे और कुछ नए शहर भी ऐड करते जाएंगे। इस तरह के स्टेट बैंक की गाइडलाइंस हैं कि टियर 4 टियर 3 सिटीज़ में भी हमें एक्सपैंड करना है। हमारी जो स्ट्रेटजी होगी उसके अंदर पाकिस्तान के जो कारोबारी तबका है जो एक्चुअली रियली जो हमारी कहना चाहिए बैकबोन है इकॉनमी की, कमर्शियल एसएमई के नाम और कंज्यूमर फाइनेंस के नाम जो है उनके अंदर हम मेजॉरिटी अपनी ग्रोथ को फोकस रखना चाहते हैं और वहीं पर हम जाके सारे बिजनेसेस को फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। और बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी हम हमेशा से एक एक्टिव प्लेयर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी फोकस हम करेंगे और ओवरऑल बैंक जो है वो एक ग्रोथ स्ट्रेटजी पे इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। हमारे पोर्टफोलियो की हेल्थ बहुत अच्छी है, जिस तरह से तनवीर साहब ने आपको बताया कि हमारी जो इंस्पेक्शन रेशो है वो भी एक काफ़ी मुनासिब लेवल पे एक्चुअली बहुत बेहतर हुआ है पहले से और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस आज के दौर में जो है हमारा पोर्टफोलियो जो है वो एक सॉलिड फुटिंग के ऊपर है और इसमें तमाम बहुत अच्छे नाम जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं वो प्राइमरीली उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा जो फाइनेंसिंग की किताब है और इंशाल्लाह ताला बैंक जो है वो एक नुमाया और टॉप रेटेड बैंक के तौर पे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उभर रहा है और ये एक जर्नी है, इसको इंशाल्लाह ताला हम जारी रखेंगे।
थैंक यू यूसुफ साहब। हमारे पास कुछ सवालात भी आए हैं। So what we do, we first run the entire presentation and then we'll take certain questions जो कि chat box में आए हुए हैं, और फिर we'll allow certain people और जिसके जहन में सवालात हैं तो वो by raise of hand on Zoom आप बता सकते हैं, तो we'll unmute you and then you can ask the question. So moving forward towards our financial performance. जी, तो ये मोरलेस हम लोग डिस्कशन। सो इन टर्म्स ऑफ अवर बैलेंस शीट हम लोग ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स तकरीबन 1.8 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ओवरऑल मार्केट शेयर हमारा इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 3.4% लास्ट ईयर टू 3.8%. With a growth of approximately 36% this year. Deposit remain our cornerstone of our strategy. इस साल जो डिपॉजिट्स जनरेट हुआ उससे वो यूटिलाइज हुआ हमारी ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिपे करने में, और फिर जो बकाया लिक्विडिटी जनरेट हुई वो यूज हुई फाइनेंसिंग के अंदर डिप्लॉय करने के लिए। और आपने ये चीज देखी होगी कि इस साल हमारी फाइनेंसिंग में सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ है ऑफ 238 बिलियन, and we have fired across all business segments. We are firing on all cylinders. Our corporate CIPG business ने increase करा तकरीबन 145 बिलियन से, रिटेल बिजनेस जिसके अंदर CBSME शामिल है उसने इंक्रीज करा 68 बिलियन से, and last but not least consumer has increased by 22 billion. Similarly, in terms of our revaluation of assets, there has been a reduction of around 5.6 billion, जो कि predominantly decrease है surplus on ijara sukuk because of realization of certain gain and repricing duration. देखना ये डिस्कनेक्ट हो गया कॉपी। ये डिस्कनेक्ट हो गया स्टार्ट। Thank you very much. Apologies for the certain logistic issues. So we are back. Moving towards the next slide. In terms of P&L, फैक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले में तकरीबन 6% की कमी हुई है। I'll give a quick run through of my P&L. In terms of net profit return earned, there has been a reduction of 13%, जो कि तकरीबन 10.7 बिलियन बनता है। And इस साल obviously the reduction in NRFF is predominantly because of steep decline in policy rate. तकरीबन 8% का reduction है average policy rate के अंदर, plus on top of it Islamic banks की top line impacted rate because of implementation of minimum deposit rate, जिसके तहत 75% जो भी एसेट का रिटर्न है वो शेयर होल्डर वो डिपॉजिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 2025 से, जिसने मजीद इम्पैक्ट करा हमारी टॉप लाइन को। हम लोगों ने इसको ऑफसेट करा बाय इंक्रीज इन आवर डिपॉजिट बुक एंड इंप्रूविंग आवर ओवरऑल डिपॉजिट मिक्स ऑन एन एवरेज बेसिस, जिसकी वजह से जो रिडक्शन था उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करा 10.7 बिलियन पे, जो कि बनता है तकरीबन 13%। इन टर्म्स ऑफ नॉन फंड इनकम इंक्रीज था तकरीबन 12 बिलियन का, जो कि बनता है तकरीबन 70%। इस नॉन फंड इनकम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है मेरा कोर रेवेन्यू जो कि है मेरा फी बेस इनकम एंड एफएक्स इनकम। मेरी जो फी बेस इनकम है वो तकरीबन 22% से बढ़ी है और एफएक्स इनकम तकरीबन 50% से बढ़ी है। तो अगर मैं बात करूं मेरी कोर एनएफआई की, तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 30%, और उसके ऊपर
considering the view on the policy rate, we realized certain capital gains on Ijara Sukuk as well, which helped us to increase our total non-fund income to 70%. Despite rate reduction के लास्ट ईयर हमने 97.7 बिलियन का टोटल रेवेन्यू बनाया था, जो कि इस साल डिस्पाइट रेट रिडक्शन के बड़ा है और हम 99 बिलियन तक पहुंचे हैं, एंड ओवरऑल बेसिस देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 1.4%. In terms of total expenses, expenses remain contained at 14.3%. मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इस एक्सपेंसेस के अंदर फुल ईयर कैलेंडराइजेशन इम्पैक्ट भी शामिल है उन 132 ब्रांचेस का जो कि 2024 में हमने खोली थी, और मजीद 45 ब्रांचेस हमने 2025 में खोली हैं. इसके अलावा यू ऑल आर अवेयर के इस साल तमाम बैंकिंग सेक्टर्स को रेमिटेंस रिलेटेड इंसेंटिव की कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी पड़ी है, वो भी इसमें शामिल है. अगर मैं इम्पैक्ट को निकाल दूंगा तो मेरी growth in expenses was contained and it was around 7 to 8% year on year basis. In terms of provisions, this has been a good year. हमारे पास ना सिर्फ NPLs के अंदर substantial recovery आई, बल्कि IFRS 9 के अंदर भी because of improvement in macroeconomic variables, मेरे पास IFRS 9 के अंदर भी reversal आया. On top of it, at operating profit level, there has been a reduction in 12%. However, at profit before tax, the reduction has been reduced to 6.7%. जी कुछ स्लाइडें to compare our pre-conversion performance and post-conversion performance. I mean, हम लोगों ने ये देखा है कि post-conversion to Islamic banking, there has been an accelerated and strong growth in terms of profitability and in terms of balance sheet size. इसी को थोड़ा सा मैं walk through करवाऊंगा. In terms of PBT, pre-conversion, अगर मैं compare करूं from 2015 to 2022, so there has been a CAGR of 18%. However, post-conversion in terms of PBT, the CAGR has been 28%. Next slide, please. In terms of PAT, pre-conversion it's 15% and post-conversion is 25%. Or this is despite of higher tax rate in 2024 and 2025. In terms of total assets, pre-conversion the growth rate was 14%, and post-conversion the CAGR has been 18%. Next slide. In terms of financing, pre-conversion the CAGR has been 14%, and post-conversion the CAGR is 24%, with 38% growth in financing in 2025. In terms of total deposits, pre-conversion the CAGR was 15%, and post-conversion the CAGR is 22%. एक साथ साथ एक चीज वाज़ह करता चलूं यहाँ पे कि 2024 की ग्रोथ 2023 के मुकाबले में फ्लैटिश है. That's because of the ADR related tax implication जो कि 2024 में थी, और 2025 में हमने उसको रिकूप कर लिया है by growth of around 37% on a year-on-year basis. In terms of financial metrics, investor metrics के हवाले से हमारी book value per share has been constantly improving. जो price to book ratio है, that has almost got doubled as compared to 2021. 2021 में the price to book ratio was around 53%, जो कि 2025 में 122% पर है, with a share price constantly improving. और obviously एक element डिविडेंड पे आउट का भी है जो 2022 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने पे आउट करना स्टार्ट करा है. In terms of earning per share, there has been a persistent increase. However, in 2025, there has been slight reduction in earning per share. From 15.2, we have gone to 14.3. We have already discussed this. This is because of steep decline in the policy rates. Price to earning ratio got doubled.
from 3.2 in 2024 to 6.5 in 2025. Return on assets and return on equity both have decreased in 2025 because of reduction in policy rate. However, still in terms of ROE, we are yielding around 90.4%, which is higher than the policy rate. ADR में हमारी हिस्ट्री रही है कि हम 50% ADR पे रहे हैं और हम 61% पे मौजूद हैं 2025 में. However, इसका एक इम्पैक्ट हमारी कार के ऊपर भी है कि हमने अपनी कार को बड़ा एफिशिएंटली यूटिलाइज करा है एंड वी आर सिटिंग एट 14% कार. अगर मैं इस स्लाइड में थोड़ी सी तवज्जो और दूंगा, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अगर हम देखें, the capital has been constantly increasing from 64 billion in 2021 to 114 billion in 2025. 2025 में भी तकरीबन 8 बिलियन का इजाफा हुआ है कैपिटल में, यानी बैंक कॉन्स्टेंटली कैपिटल जनरेट कर सक रहा है डिविडेंड पे आउट करने के बावजूद. जो डिक्रीज है कार के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ग्रोथ एस्पिरेशन की वजह से है और यही रीजन है जो कि अभी रिसेंटली हमारी एजीएम के अंदर भी हमने 7 बिलियन का टीयर 2 कैपिटल और टीयर 2 सुकूक इशू कर रहे हैं, जिसमें से 5 बिलियन प्लस 2 बिलियन का ग्रीन शू ऑप्शन है, वो हम लोग करेंगे जो कि होपफुली बाय Q2 मटेरियलाइज हो जाएगा एंड दिस विल गिव मी अनदर अपटिक इन माय कार सपोर्टिंग माय ग्रोथ एस्पिरेशन. मैं एक और चीज साथ साथ क्लैरिफाई कर दूं, वाज़ेह करता चलूं कि जो टीयर 2 सुकूक इशू कर रहे हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ग्रोथ एस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह बाय Q2 मटेरियलाइज हो जाएगा. This is the deposit composition. The CA and CASA ratio has been constantly improving. From 31% in 2021, the CA has increased to 38% in 2025. This year we have crossed around $500 billion mark in terms of CA deposits and reached 538 billion, which is an increase of around 128 billion on a year-on-year basis. In terms of ESG and CSR, we remain committed to sustainable development. In fact, बैंक की पॉलिसी है कि अपनी प्रॉफिट का एक मखसूस परसेंटेज हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं हमारी वक्फ फैसल को, और 2025 में भी हमने तकरीबन 139 बिलियन कंट्रीब्यूट करा with focus on healthcare, education and financial inclusion. और ये सारे इनिशिएटिव जो कि हम CSR एक्टिविटीज में कर रहे हैं, they are aligned with UN Sustainable Development Goals. These are our impact partners जो कि हम वक्फ फैसल के साथ इनके साथ काम कर रहे हैं. These are the key business risks. Faisal Bank maintains a comprehensive and well-established risk management framework जो कि effectively identify करता है, monitor करता है और manage करता है इनकी business risk को. Details इनकी business risk की हमारे financial statements में भी मौजूद हैं और किस तरीके से हम monitor करते हैं, identify करते हैं, वो भी हमारी annual report का हिस्सा है. Moving towards the conclusion, I mean, we have delivered a strong balance sheet growth in 2025. We have more or less maintained our profitability despite margin pressure. Or inshallah, looking ahead, Faisal Bank remained confident that we will be inshallah sustaining the growth momentum and we will be leveraging the digital capabilities and enhancing our overall shareholder value. So thank you for your time and attention, and we will now be happy to take any questions. I understand हमारे पास कुछ questions हमारे chat box पे भी आए हैं. तो first I'll be reading few of those questions and will be responding to those. और फिर अगर कोई online के सवाल पूछना चाहे तो please you can raise your hand and we'll unmute you so you can ask the question.
आई वुड रिक्वेस्ट जो सवाल पूछ रहे हैं अगर आप साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन कर देंगे तो इट्स इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। तो एक सवाल है अब्दुल अहद साहब से आया है कि व्हाई फैसल बैंक डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स। मैं एक साथ साथ एक चीज बताना चलूं, प्रॉब्ली आप हमारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर रेफर कर रहे हैं जो डिपॉजिट का ब्रेकअप हम लोग देते हैं। अगर हम वहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो मेरे इंडिविजुअल्स की परसेंटेज बनती है तकरीबन 17-18%। मगर साथ साथ मैं एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि इंडस्ट्री में देयर इज अ मिक्स प्रैक्टिस। आई मीन बहुत सारे कस्टमर्स सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, तो देयर आर सर्टेन बैंक्स जो उसको भी ट्रीट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। हाउएवर हमारे पास वो डिपॉजिटर आ रहा होता है प्राइवेट कंपनीज के अंदर, क्योंकि उस सोल प्रोप्राइटर के पीछे कोई ना कोई बिजनेस लिंक होता है। तो अगर मैं उसी बेसिस के ऊपर अपने उस नोट को बनाऊं तो मेरी जो कंपोजिशन है इंडिविजुअल्स की वो तकरीबन 17% से बढ़ के 35-36% तक पहुंच जाती है। और अगर आप देखोगी भी तो उसके अंदर एक नुमाया इजाफा हुआ है इस साल उस डिपॉजिट बेस के अंदर। सो अगर मैं इंडिविजुअल्स को देखूं तो my individual percentage is around 35-36%. There has been an increase as compared to last year, but yes, अगर मैं मार्केट को देखूं तो मार्केट के अंदर अगर जो मिड साइज बैंक हैं या जो लार्ज बैंक हैं तो उनका 40% से लेके तकरीबन 60% तक ये मिक्स है। और जिस तरह से मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट को हम लोग फोकस कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट दैट इन द फ्यूचर ईयर this will increase. Next question is एक कॉस्ट टू इनकम रेशियो के ऊपर एक सवाल है राय हैदर अली का कि your cost to income ratio is on a higher side. Would you expect this to come down to 50% in the coming quarters? जी, we are cognizant of the fact कि फैसल बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज ऑन हायर साइड which is at around 57%. मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताता चलूं कि फैसल बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो यूजुअली 50% से ज्यादा ही रहा है। मैं अगर Q1 की बात करूं तो हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो वाज अराउंड 60% in Q1. In Q2 this went down to 59%. In Q3 this further got down to around 58%, और अब पूरे साल की बेसिस के ऊपर ये तकरीबन 57% के ऊपर है। तो और इसकी एक मेजर रीजन है हमारी ग्रोथ एस्पिरेशन। मैं अगर बात करूं पिछले इन 2 से 3 सालों में तकरीबन 20% ऑफ आवर ब्रांच नेटवर्क हैज इंक्रीज, एंड ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो तो पहले दिन से ही पड़ जाएगी, बट जो रेवेन्यू जनरेट होगा थ्रू डिपॉजिट वो ग्रेजुअली डिपॉजिट बेस आपकी बढ़ेगी और इस कॉस्ट इनकम रेशियो को कम करेगा। तो ये एक मेजर रीजन है कॉस्ट इनकम रेशियो हायर रहने का। और यस, गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट दैट दिस कॉस्ट टू इनकम रेशियो विल ग्रेजुअली कम डाउन। और ये हमारी एक जो हमारी रिसेंटली हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है 5 साल, उसके अंदर भी एक ये हिस्सा है कि जैसे जैसे मेरा डिपॉजिट बेस बढ़ेगा उसी तरीके से मेरा कॉस्ट टू इनकम रेशियो नीचे आएगा, और इवेंचुअली 5 सालों के अंदर yes we see our cost to income ratio to come down below 50%. एक और सवाल है हमाद अहमद का। अच्छा, एक सवाल है रिवर्सल से रिलेटेड। over the past 6 quarters the bank has recorded reversal partly related to IFRS 9 adjustment made earlier. मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि मेरे ख्याल से आप 2024 और 2025 2 सालों से जुड़कर ये सवाल बनाए। तो मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि IFRS 9 पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ था फ्रॉम 2024 1 जनवरी 2024, और IFRS 9 जिस तरीके से कंप्यूट होता है
तो वो है ये कि अगर आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स खराब होंगे तो दिस विल रिजल्ट इन हायर ईसीएल, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंप्रूव होंगे तो ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है उसके अंदर कमी आएगी। इसी तरीके से बुरे हालातों में ज्यादा डिफॉल्ट्स होते हैं, जब ज्यादा डिफॉल्ट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपकी पीडीएस पे पड़ता है, इवेंचुअली आपका क्रेडिट पीसी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बढ़ता है। तो जिस वक्त 1 जनवरी 2024 के अंदर आईएफआरएस 9 इंप्लीमेंट हुआ था तो उस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वो वारंट करते थे कि हायर आईएफआरएस 9 ईसीएल को रिकॉर्ड करा जाए। सब्सिक्वेंट टू दैट क्योंकि उस वक्त अगर हम देखें तो हमारी कंट्री की रिस्क रेटिंग भी ट्रिपल सी हो गई थी, जो कि ग्रेजुअली अब जाके इंप्रूव हुई है। तो फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2025, इन 2 सालों में इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में एक वाज़ेह फर्क नजर आया है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर अवेलेबिलिटी भी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो कंपैरेटिवली कम हो गई है, जो कि 1 जनवरी 2024 में थी। जो मेरे सेगमेंट्स उस वक्त जिस वक्त आईएफआरएस 9 इंप्लीमेंट हुआ था उस वक्त सर्टेन सेगमेंट्स हाई रिस्क पे थे, जो आज जाके वो हाई रिस्क से निकल गए बिकॉज ऑफ दोस इनहेरेंट रिस्क। जिस वक्त आईएफआरएस 9 इंप्लीमेंट हुआ था कुछ सेक्टर्स हाई रिस्क में थे, इसकी वजह से सर्टेन लोन्स वर इन स्टेज 2। जैसे जैसे मेरे इकोनॉमिक फैक्टर्स इंप्रूव होते गए वैसे वैसे मेरी जो रिस्क प्रोफाइल है इन कस्टमर्स की वो बेहतर होती गई, और ऐसा ऐसा मेरा पोर्टफोलियो ग्रेजुअली फ्रॉम स्टेज 2 स्टेज 1 में आ गया। तो यही रीजन है कि अगर मैं देखूं कि इन 24 महीनों के अंदर ना सिर्फ क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर हुई है, मेरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बेहतर हुए हैं, और कोई इतने सिग्निफिकेंट डिफॉल्ट्स इस पीरियड में नहीं आए जिसकी वजह से मेरे आईएफआरएस 9 के ईसीएल के अंदर रिवर्सल आया। साथ ही साथ अगर मैं 2025 की बात करूं तो इस 2025 के 12 महीनों में ये सिर्फ आईएफआरएस 9 का रिवर्सल नहीं है। इस साल हम लोगों ने तकरीबन 4 बिलियन की एनपीएल्स के अंदर रिकवरी करी है। तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इस साल मेरी स्पेसिफिक प्रोविजन की रिकवरीज का है जो कि इस साल मटेरियलाइज हुआ है, और यही रीजन है कि मेरे जो ओवरऑल एनपीएल 24 बिलियन से कम होके 20 बिलियन 2025 में हो गए, और मेरा इन्फेक्शन रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है। एक और सवाल है, डिस्पाइट हैविंग द करंट अकाउंट आप व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट? जी बिल्कुल, हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर मैं 2025 की बात करूं तो तकरीबन लगभग 5.5% के करीब है। और अगर मैं इसके ऊपर एक चीज और वाज़ेह करता चलूं, अनलाइक जो एक सवाल है कन्वेंशनल बैंक से भी इसको लिंक करा गया है कि कन्वेंशनल बैंक्स में जैसे ही पॉलिसी रेट कम होता है उसके अगले महीने से पॉलिसी रेट रिडक्शन का पॉजिटिव इम्पैक्ट अफोर्डेबिलिटी पे आने लग जाता है। बट इस्लामिक बैंक्स में ये बेनिफिट ग्रेजुअली आता है। क्यों? क्योंकि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमडीआर जैसे जैसे मेरा रिटर्न एसेट्स का कम होगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम होगी, और यही रीजन है कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो जो 2025 में थी उसके मुकाबले में 2026 में वो ग्रेजुअली कम हो रही है, क्योंकि दिसंबर में जो पॉलिसी रेट कट हुआ था जनवरी में मेरे एसेट्स रिप्राइस हुए, इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट मेरी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पे भी आया। तो मेरी तकरीबन 5.5% के करीब 2025 की वाईटीडी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थी, जो कि 2026 में यस वी एक्सपेक्ट दिस विल रिड्यूस। एक और सवाल है मोहम्मद वलीद राठौर का, हाउ मच ग्रोथ डज द बैंक टारगेट इन इट्स डिपॉजिट फॉर द ईयर 2026? तो वली साहब, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारी हिस्ट्री रही है कि जो भी मार्केट की ग्रोथ होती है तो मार्केट के मुकाबले में फेडरल बैंक की डिपॉजिट की ग्रोथ तकरीबन 3 से 5% ज्यादा ही होती है। और इस साल भी हमारी एस्पिरेशन यही है कि जिस परसेंटेज से मार्केट ग्रोथ करेगी उससे 3 या 5% हम लोग ज्यादा रहेंगे, तो वी विल बी ग्रोइंग
more than market, and that's the reason our market share has been increasing. और इस साल भी from 3.4% in 2024, it has increased to 3.8% in 2025. कॉस्ट टू इनकम रेशियो का वापस से सवाल था, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ. एक और सवाल है, गुलाम अब्बास ने पूछा है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट बुक के बारे में बताएं और यील्ड्स बताएं ऑन बोथ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट पोर्टफोलियो. तो मैं इसके ऊपर क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी जो आई मीन ये चीज हम लोग वाले तौर पे देख भी रहे हैं कि अपेरेंटली जिस तरीके से काइबोर की अंदर मूवमेंट हो रही है पिछले एक महीने के अंदर, अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा है कि हमारे जो पॉलिसी रेट है वो बॉटम अप हो गए. और इसी तरीके से हमने अपनी बुक को पोजीशन ही इस तरीके से करा हुआ है ताकि मेरा मैक्सिमम पोर्टफोलियो वेरिएबल रेट के ऊपर हो, और इस अगर इन केस अगर पॉलिसी रेट बढ़ता है तो उससे मैं बेनिफिट हासिल कर सकूं. हमारे पास जो यील्ड रही है, ओवरऑल मेरी जो यील्ड है वो तकरीबन 12% के करीब थी, जिसके अंदर वेरिएबल रेट वाज क्लोज टू अराउंड 10% और फिक्स रेट की जो वेटेड एवरेज यील्ड थी वो तकरीबन 12-12.5% है, और मिक्स भी तकरीबन 73% एंड 26% का है. यानी 73% इज द फ्लोटर एंड 26% आर द फिक्स रेट बॉन्ड्स. So, Federal Bank has the largest loan to deposit ratio. Could you reflect? Thanks. जी. तो ये सवाल पे मैंने भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में भी यही चीज मैंने बताई थी कि yes, our ADR is higher at 60%, and yes, हम going forward इस ADR को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, but it will remain more than 50%. बट यस ताकि और यही रीजन है क्योंकि 60% के ADR के ऊपर माय कार इज आल्सो एट 14%. तो यस, this advances to deposit ratio will be optimized and it will be lower by December. What strategies? अच्छा, एक है what will be the CAR ratio after raising Tier 2 capital and dividend strategy? जी, जो 7 बिलियन का हम Tier 2 सुकूक इशू कर रहे हैं उससे तकरीबन 80 to 85 बिप्स का इम्पैक्ट है. यानी अगर मेरी कार 14% के ऊपर है तो ये कार बढ़ के 14.85% के करीब आ जाएगी. और पिछले चंद सालों से अगर आप देखेंगे तो हमारी डिविडेंड पॉलिसी स्टीडी रही है कि हम तकरीबन 40 to 46% वी आर पेइंग इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, और इंशाल्लाह वी विल बी कैरिंग द सेम मोमेंटम इन 2026. इंटरेस्ट रेट आउटलुक के ऊपर आई हैव ऑलरेडी रिस्पोंडेड. डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर आई हैव ऑलरेडी रिस्पोंडेड. कॉस्ट टू इनकम रेशियो के ऊपर आई हैव ऑलरेडी रिस्पोंडेड. एमपीसी को भी हमने मोरलेस डिस्कस कर लिया है. कार ग्रोथ का एक सवाल है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. फैज नवीद भट्ट का एक सवाल है, बैंक्स कार करंटली स्टैंड इज 14% और फॉलोइंग द टियर 2 सुकूक, उसका जवाब मैं दे चुका हूं. अब्दुल अहद का एक और सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ, करंट अकाउंट की ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो जी, in this sort of interest rate scenario, हमारा फोकस भी लो कॉस्ट स्टिकी डिपॉजिट्स के ऊपर ही है. इसीलिए we focus on our acquiring business, our cash management proposition, and at the same time the sole proprietor business accounts, जहाँ पे मैं लो कॉस्ट स्टिकी डिपॉजिट जनरेट कर सकूं. और हमारा टारगेट यही है कि मैं मैक्सिमम अपने करंट अकाउंट की ग्रोथ को करूं ताकि दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन माय NRFX. एक नवीद एरिया का एक सवाल है, डिपॉजिट पर ब्रांच बैंक का 2 बिलियन से कम है.
which is comparatively lower as compared to कि दूसरा सवाल कार का था वो मैं रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ। मैं इसके बोलूँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अवर डिपॉजिट पर ब्रांच इज लोअर एज peer, बट साथ ही साथ अगर मैं इसके ऊपर एक और चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा जो 20% नेटवर्क है वो मेरा रिसेंट पास्ट के अंदर इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली वो जो ब्रांच नेटवर्क को मिच्योर होने में तकरीबन 3 से 4 साल लगते हैं। तो यस माय deposit per branch is lower, but there has been persistent increase in this per branch deposit. अगर मैं एक चीज और वाज़ेह कर दूं यहाँ पे कि जो डिपॉजिट पर ब्रांच था 2024 के अंदर वो तकरीबन 1.2 बिलियन पर ब्रांच था, जो कि 2025 में वो डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन 45 ब्रांचेस इंक्रीज होके 1.6 बिलियन पर ब्रांच हो गया है। एंड यस, एज दीज ब्रांचेस विल इवॉल्व मैच्योर्ड, ये मेरा डिपॉजिट पर ब्रांच बढ़ेगा। ऑनलाइन एक और सवाल है हसनैन मुर्तजा का कि हाउ मेनी ब्रांचेस आर एक्सपेक्टेड टू बी ओपन दिस ईयर and what are the growth expectation in terms of remittances and trade volumes? जी अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने इस चीज पे क्लैरिफाई करा कि रिसेंटली बोर्ड की 5 साल स्ट्रेटजी अप्रूव हुई है और उसके अंदर हमारी एस्पिरेशन है कि हम 1000 प्लस नेटवर्क पे जाएंगे। तो यस, इस साल भी हमारी ब्रांचेस खोलने की एस्पिरेशन है, बट ऑब्वियसली अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू लुक कि मेरी ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की क्या है, मार्केट की डायनामिक्स क्या है और उसकी बेसिस के ऊपर ब्रांच नेटवर्क की ग्रोथ होगी। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस यस, आवर एस्पिरेशन इज टू इंक्रीज आवर ब्रांच नेटवर्क एंड वी वांट इट टू बी 1000 प्लस। एक और सवाल था in terms of trade volumes, there has been a substantial increase. इस साल भी रेमिटेंस के अंदर हमारा मार्केट शेयर तकरीबन 4% पे था, इंक्रीज होके 6% पर आ गया है। अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग $2.5 बिलियन का हमारा रेमिटेंस का वॉल्यूम है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एज वेल अराउंड 35 से 40% की ग्रोथ है एंड वी आर सिटिंग एट 45% of 45% in 4.5 billion in terms of trade volumes. जी बिल्कुल, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं हम सीबीएसएमई को एंड ऑब्वियसली सीबीएसएमई से हमारी कोशिश यही है कि जो हमने एक जाल बिछाया था हब एंड स्पोक मॉडल की तरफ, जो रीजनल ट्रेड हब्स हमने बनाए थे और नाउ दीज आर रीपिंग फ्रूट। और यही अगर हम देखें तो तकरीबन 30-40% हमारे ट्रेड बिजनेस में इजाफा है, जो कि रिफ्लेक्ट भी कर रहा है मेरी ट्रेड बेस इनकम के अंदर और वॉल्यूम्स के अंदर भी, जो कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपने यकीनन देखे होंगे। तो यस, इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे ट्रेड बिजनेस में अच्छा इजाफा होगा एंड ऑब्वियसली जो ट्रेड बिजनेस को फंड कर रहे होते हैं, हम फंड कर रहे होते हैं हम एक्सपोर्ट से या हमारे रेमिटेंस बिजनेस से। तो इवेंचुअली यस, वी आर बैलेंसिंग अवर रेमिटेंस वॉल्यूम as we are increasing our trade business and we expect कि 2026 में भी हमारा ट्रेड और रेमिटेंस बिजनेस में नुमाया इजाफा होगा। अगर कोई सवालात हैं तो प्लीज एक एक करके ये हनी साहब सैयद हनी साहब प्लीज आपका आपने हाथ उठाया है, आपका सवाल है कोई? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल तो ऐसा खास नहीं है, लेकिन बात ये है कि सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ यूसुफ साहब का कि उन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए जिससे काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। बात ये है कि आज ही पेट्रोल की प्राइस जो है वो तकरीबन डबल हो, उसका मार्केट पे और अपनी बैंकिंग इंडस्ट्रीज पे और आपकी जो लैंडिंग है उस पर क्या देख रहे हैं वो बताएं। जी जी बिल्कुल, देखिए इसके ओवरऑल मैं इकोनॉमी से इसको लिंक करूंगा कि ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर इसका पड़ता है
और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट फिर हमारे पॉलिसी रेट के ऊपर भी होगा। तो जहां एक फ्लिप साइड है वहां पर जहां एक पॉजिटिव साइड है तो उसका नेगेटिव एलिमेंट भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि जब मेरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इवेंचुअली दिस विल इम्पैक्ट द पॉलिसी रेट भी बढ़ेगा। जब पॉलिसी रेट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दूसरा जो इम्पैक्ट इसका है वो मेरी कॉस्ट के ऊपर है, क्योंकि यस, जब मेरी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इवेंचुअली उसका प्रेशर मेरी कॉस्ट के ऊपर भी पड़ेगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बैंक ने डिफरेंट ऑस्टेरिटी ड्राइव के भी मेजर्स करे हुए हैं ताकि हम इस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सकें। शुक्रिया। दूसरा सवाल उसका है? जी, बिलाल, आपको अनम्यूट करा है, प्लीज आपका कोई सवाल है? Bilal, you can unmute and ask the question. तो किसी और को पूछा नहीं। जी जी, वलीद साहब, आप प्लीज सवाल पूछें, आपको अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा सवाल एक्चुअली है कि आप लोग अपनी एनुअल रिपोर्ट में 1% चेंज का एक इम्पैक्ट दिया हुआ है। अगर इंटरेस्ट रेट में 1% चेंज है तो उसमें आपकी पीएनएल में 5 बिलियन का इम्पैक्ट होता है और ओसीआई में 6.8 बिलियन का, विच इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अगर 1% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए बैंक की क्या स्ट्रेटेजी होगी? बिकॉज अभी आजकल बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट दोबारा इंक्रीज किया जाएगा एंड सेकेंडरी मार्केट में तो ऑलरेडी उसका इफेक्ट आ ही है। सॉरी, दूसरा सवाल क्या था आपका? सेकेंडरी के बाद आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि लाइक सेकेंडरी मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ ही गए हैं, पॉलिसी रेट भी बढ़ने के बहुत इम्कान है। तो ये जो इम्पैक्ट आप लोगों ने 1% का निकाला हुआ है अपने एनुअल रिपोर्ट में, इसको मिटिगेट करने के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखें, जो इम्पैक्ट है, अब आई मीन दिस गोज विदाउट सेइंग कि ऑब्वियसली दिसंबर 25 के अंदर जिस वक्त एनुअल रिपोर्ट बन रहे थे तो उस वक्त मार्केट की एंटिसिपेशन यही थी कि दिस विल हैव अ डाउनवर्ड इम्पैक्ट और आगे जाके पॉलिसी रेट रिड्यूस होगा, तो इसीलिए उसी तरह से वो इम्पैक्ट था। और ऑब्वियसली फैसल बैंक ने अपनी बुक को इसी तरीके से प्लेस करा हुआ है कि जैसे ही कोई पॉलिसी रेट बढ़े तो उसी तरह से रिवीजन पॉजिटिव इम्पैक्ट की बुक्स के ऊपर आए। और अब क्योंकि ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट करा जा रहा है, और जो कि मार्केट में जो हम की मूवमेंट देखें उसको भी मद्देनजर रखते हुए, और जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट अपने व्यूज पेश कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि इट इज एक्सपेक्टेड कि आगे जाके पॉलिसी रेट बढ़ेगा, तो यस, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हमारी बुक्स के ऊपर पड़ेगा। और एक चीज और मैं बताता चलूं कि अगर अप्रैल के अंदर पॉलिसी रेट बढ़ेगा तो मेरा एक सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो अप्रैल के अंदर वेरिएबल्स बुक का है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मेरी बुक्स के ऊपर। थैंक यू जी। सकलैन पराचा, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल, प्लीज। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने टाइप भी किया था, वैसे शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिया हो। सकलैन प्राचा फ्रॉम एयर एंड फाइनेंशियल। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि एक रिसेंटली न्यूज़ जो है वो पब्लिश हुई थी जिसके अंदर मेंशन किया था कि मैपल लीफ जो है वो एक्वायर करने के लिए जा रहा है फैसल बैंक को, अराउंड विद 30% ऑफ द पोर्शन। तो एक तो काइंडली इस पे कुछ इंसाइट्स वगैरह अपनी दीजिएगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी वैल्यूएशन पे होने जा रही है या ये कब तक एक्सपेक्टेड है? अच्छा, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से जो मैपल लिफी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट मैं इतना आपको बता सकता हूँ जो कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ये चीज वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 उनकी शेयर होल्डिंग है लेस देन 5%। ठीक है ना? जी जी, प्लीज। राय हैदर, यू वांट टू आस्क? ये दोबारा सर मेंशन करिएगा काइंडली, आप जो परसेंटेज बता रहे हैं
आपकी आवाज स्किप हो गई थी। जी जी। अ, देखिए, मैंने यही कहा कि मैपल लैब बिलीव कितनी परसेंटेज शेयर होल्डिंग करना चाह रहा है, इसके ऊपर तो वही बेहतर पोजीशन के ऊपर होंगे। बट एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 उनकी शेयर होल्डिंग 5% से कम है, क्योंकि अगर 5% से ज्यादा होती तो बाय डिफॉल्ट मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए स्पॉन्सर शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करना पड़ा। कौन है? फुल नेम नहीं आ रहा, प्लीज अपना नेम मेंशन कीजिएगा। एजे, आपका कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? देखें, क्योंकि 1 मिनट बाकी है, तो आई गो बैक टू सर्टेन क्वेश्चंस और फिर उसके बाद भी मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। मैं ये आखिरी 1-2 सवाल पे हम लोग ले रहे हैं। हसनैन ने तो पूछ लिया ना, रेज हैंड किया था। जी, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? जी जी बिल्कुल, यू आर। Okay. So I have few questions. सर, मेरा पहला सवाल था regarding the reversal of provisions. आपने बात की कि 4 बिलियन का आपको रिकवरी हुई है in your non-performing loans from last year. सर, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं नोट्स देखूं एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स पोर्शन के, तो तकरीबन 400 मिलियन के जो स्टेज 3 लॉसेस हैं वो अभी तक प्रोवाइड फॉर नहीं किए गए, और 1 बिलियन के स्टेज 3 लॉसेस एडवांसेस में भी प्रोवाइड फॉर नहीं किए गए। तो मेरा सवाल यह है कि जब कंपनी के पास इतना बफर था ऑफ रिवर्सल्स, देन व्हाई आर दीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज ऑफ येट? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, आप दूसरा सवाल भी पूछें तो सारे मैं एक साथ पे जवाब देता हूँ आपको। ओके, सो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आपने परसेंटेज तो बता दी कि फिक्स में कितना पोर्शन है और फ्लोटर में कितना है, बट व्हाट इज द मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ दिस सिक्योरिटीज? यू मेंशनड कि अप्रैल में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, सो what proportion of your variable rate securities are going to be repriced in this month? This is my second question. My third question is that there was a retrospective impact because of an SBP relaxation regarding one link valuation, जिसकी वजह से almost 3.3 billion का आपने एक अनरियलाइज इनकम बुक की है इन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो क्योंकि ये एक रिलैक्सेशन की वजह से, तो विल दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट बी रिवर्स्ड इन द अपकमिंग ईयर्स? दीज आर माय 3 क्वेश्चंस। चलिए, मैं एक एक करके जवाब आपको देता हूँ। सबसे पहला सवाल था आपका स्टेज 3 का। देखिए, जो स्टेज 3 का प्रोविजन है ये गवर्न करता है IFRS 9 एंड रेगुलेशन के मुताबिक, और predominantly these are my corporate customers, जिसके ऊपर एक स्टेट बैंक की काफी सख्त रेगुलेशन मौजूद है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया दोनों मौजूद है, जिसमें 25, 50 और 100% प्लस IFRS 9 के बाद ये और मजीद सख्त हो गया है कि whichever is higher, यानी अगर लेट्स सपोज स्टेट बैंक के PR के अंदर 25% रिक्वायरमेंट है और अंडर IFRS 9 50% करना है, तो whichever is higher की बेसिस में 50% रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बैंक स्ट्रिक्टली प्रोविजनिंग कर रहा होता है स्टेट बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक। इस और जाहिर सी बात है, जो इसके अंदर कुछ कमी पेशी है, दैट्स बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजन इज फॉर दी वेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखोगे तो मैंने एक तकरीबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1 बिलियन तक का एफएसवी का बेनिफिट लिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी कवरेज वो कम है। अब यस, बैंक के पास ऑप्शन है कि एक सब स्टैंडर्ड लोन को आप लॉस कर दो, बट आई बिलीव वी बिलीव के अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे सब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो कि क्लियरली ये सिग्नल दें कि ये लोन सब स्टैंडर्ड नहीं, लॉस है, आई थिंक इट इज नॉट प्रूडेंट कि आप जबरदस्ती एक लोन को सब स्टैंडर्ड से उठा के अब लॉस कर दो। तो वी फॉलो the state bank prudential regulation in terms of that. And the second reason is जो FSP benefit का, which I've already responded. जो repricing की हम बात कर रहे हैं, तो तकरीबन मेरा 70% portfolio variable है, और उसमें से majority of portion, if I'm not wrong, approximately 60% जो कि मेरा reprice हो जाएगा
अप्रैल के अंदर। तीसरा सवाल था वन लिंक का, तो वन लिंक के ऊपर मैं क्लैरिफाई कर दूं कि रिलैक्सेशन पहले थी, अब नहीं है। मैं एक चीज को वादे कर दूं कि जब IFRS 9 इंप्लीमेंट हुआ तो अंडर IFRS 9 स्टेट बैंक ने ये कहा कि आपकी जितनी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, अब अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को भी आप मार्क टू मार्केट करोगे। पहले जो स्टेट बैंक ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस इशू करे हुए थे, उस प्रूडेंशियल रेगुलेशन के मुताबिक लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्रेकअप वैल्यू के ऊपर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड करा जाता है। जब IFRS 9 इंप्लीमेंट हो गया 1 जनवरी 2024 को, तो स्टेट बैंक ने ये कहा कि भाई आप अपनी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को आप रिवैल्यू कर दो। Due to practical difficulties in valuing these unlisted securities, स्टेट बैंक ने मजीद 1 साल की एक्सटेंशन दे दी कि ठीक है यार, आप 1 जनवरी 2024 से इसको रिवैल्यू ना करो, आप 1 जनवरी 2025 से इसको रिवैल्यू करो। तो जो बैंकिंग सेक्टर का ये जो एग्जेम्पशन, ये सिर्फ फैसल बैंक को नहीं थी, ये तमाम बैंकिंग सेक्टर्स को एग्जेम्पशन दी हुई थी, और इसीलिए तमाम बैंक सेक्टर्स ने जितनी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं वो 1 जनवरी 2025 से रिवैल्यू कर दी। और इसीलिए फैसल बैंक ने भी, जो कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, वन लिंक वाज द ओनली सिग्निफिकेंट अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट, उसी रेगुलेशन की कंप्लायंस करने के लिए अपनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी वन लिंक को रिवैल्यू करा है, और ये अब रहेगी क्योंकि अब वो एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड रहेगी आगे और हर साल रिवैल्यू हो रही होगी। आई बिलीव आई हैव रिस्पॉन्डेड टू ऑल 3 क्वेश्चंस। कोई और सवालात नहीं है, नहीं चेक बॉक्स के अंदर है। So thank you everyone for your time and attention. Thank you very much. शुक्रिया।